Marketing research and market research differentiation we have discussed. We have also understood that marketing research is can be called as the part of entire market research, right? And marketing research and market research overlaps somewhere in terms of their scope. We have seen which are the aspects or which are the functions and domains of your business where you can do marketing research as well and you can do market research as well. In the sense, you can do a research related to your own company, own internal factors, and you can do a research related to the comparison for external factors also. So these are some examples of market research, marketing research we have already discussed. And we were also talking about why research, why do we need research in marketing, why do we need research in any kind of business functions for that matter. So when you talk about marketing research, you need marketing research to understand business competition, to survive your business, to gain sustainable competitive advantage, and to address the challenges in dynamic business environment, and to deal with the increasing global competition. You need marketing research, you need market research for that matter, right? We were also discussing about what are the motivations of studying this research. So low cost of data technology, use of various softwares, uh, availability of expert people, and every all those things. And it's like it's become easy nowadays for creating your own research problems, because you are already aware कि you already have so many data collected, generated in the auto collected form, databases से, data sources से सब कुछ available होते जा रहा है. So along with the softwares which can powerfully treat your data, powerfully analyze your data. So that is a motivation about going for marketing research. We were also talking about objectives and significance of research, where we have seen that the most important objective of research is it's a tool for decision making. What it is? It's a tool for decision making. It helps you people in the sense managers, marketing managers. For me now onwards, you are marketing managers, right? So it helps you people in order to take any kind of business decisions. It reduces dilemma. It reduces dilemma of manager. It reduces dilemma of marketers, business owners, right? It reduces uncertainty. It assists you for a decision making. सबसे important scope क्या है? It assists you for a decision making by providing information. आपको decision making में ये support करता है, because uh, we know that we have learned entire decision making process chapter in unit 2 of management fundamentals, right? So there we were talking about decision making. क्या होता है decision making? It's a process of selecting an. अभी मैं आपको definition पूछूंगा ना तो आपको नहीं आएगा, right? बट वो आना चाहिए. व्हाट इज द डिसीजन मेकिंग? बोलो टेक्निकल वर्ड्स में बताओ मुझे. The process of selecting given alternatives. Yes, great. So decision making is the process of selecting the best alternative amongst all our alternatives available with you, right? Yes. So the manager's role in the any company is just to go and select the alternative, just to make a decisions for many things. Whether you increase the advertisement or whether you decrease the alternative, you have alternatives available. If you are supposed to increase the advertisement, by which medium, by which effort, by which company you are going to run your campaign and all. So decision making में alternatives बहुत सारे रहते हैं. Managers are always uncertain about what kind of decision has to be made. They need information. फॉर एग्जाम्पल आपको सिलेक्ट करना है कि कौन से मीडियम से आपको एडवर्टाइजमेंट कैंपेन रन करनी है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ मीडियम फॉर द बिजनेस कैटेगरी दैट यू आर रनिंग इन, राइट? तो वो सब चीजें आपको इन्फॉर्मेशन से पता चलती है. सो डिसीजन मेकिंग के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए. एंड इन्फॉर्मेशन रिड्यूसेस योर अनसर्टेनिटी, इन्फॉर्मेशन रिड्यूसेस योर डिलेमा, कंफ्यूजन, and that comes from the research only. So research is nothing but a decision making assisting tool, you can call, right? जब भी हम रिसर्च करते हैं तो हम क्यों करते हैं? हमको डिसीजन मेकिंग के लिए करते हैं. मैं आपको जब मैनेजमेंट फंडामेंटल्स बता रहा था उसमें मैं प्लानिंग जब पढ़ा रहा था, आई वाज गिविंग यू एग्जांपल ऑफ if you are supposed to go for a one day trip with your friends, right? One day trip with your friends, so you will do a small unorganized kind of research for that matter. You will check कि nearby place कौन सा है जो एक दिन में खत्म हो सकता है. So what you are supposed to make a decision where to go. Then for that you will need information. What you can experience there, what is the distance for that particular place from your place. ये सब चीजों का रिसर्च करना पड़ेगा. So decision making में इंफॉर्मेशन चाहिए. इंफॉर्मेशन आएगी रिसर्च, राइट? तो यहाँ तक हमने कल पढ़ा था. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड रिसर्च डिजाइन, राइट,
you all must be aware that when you talk about characteristics of research design, it has been already taught to you all, right? पढ़ाया गया है what are the characteristics of good research design. Yes. The first semester subject BRM, you have studied, Yes. right? You have studied what are the characteristics of good research design. And what do you mean by research design? Research design is nothing but the steps and Blueprint. procedures. Bolo. Blueprint of what we are going to do. Blueprint of what research studies you are going to do. It's a kind of set of procedures that you are going to follow for the particular research study, right? So research study के लिए जो आप actions लेने वाले, step लेने वाले, उसका जो framework आपके पास है वो कैसा होना चाहिए? What should be the characteristics? What are the characteristics of good research design? So whenever you are into marketing research or market research, interchangeably है, scope में difference है, you all know. तो आप differentiate तब करोगे जब जरूरत पड़ेगी, right? For us, everything is market research. For us, everything is market research. So whenever you are into any kind of exercise of market research, you will have to select a good research design, right? That's the reason. Actually, this particular slide is not part of your this syllabus. Marketing research syllabus में इसका जरूरत नहीं है, ये नहीं है syllabus. But I'm telling you because if you are supposed to conduct any market research study, you cannot conduct that study without knowing any research design, right? अगर आपको research methodology आता है नहीं है तो आप market research कर ही नहीं पाओगे. So you have to understand what are the characteristics of good market research design बोल सकते हैं हम. What are the characteristics of good market research design? So you all know these characteristics. I will not explain it on one by one. Let's just go through it. And अगर किसी को कुछ doubt है, if you don't know any, if you are having confusion of any of this point, you can just raise your hand and come between. So what are the characteristics of good market design? A good market research design. So your market research, whatever you are going to do, should generate a dependable data. In the sense, your market study should give a trustworthy, authentic information. पूरा research किया और उसने generally बोल दिया increase your competition, increase your advertisement. Is that a dependable information? क्या lagging है इसमें? What is lagging in this particular statement? अगर research findings में पहला statement ये है, your sales is decreasing because of lagging, because of less campaigning and because of less advertising. तो ये dependable information है क्या? No, sir. It is not, because you should be suggested which segment, for which product, which kind of advertisement is required, by which medium it has to be done. This all information should be provided. So whatever information you are generating to your research should be dependable, authentic, trustworthy, जिस पे हम भरोसा रख सकते हैं, right? And अगर trustworthy information आपको generate करनी है तो what you have to do? You have to follow proper research design methodology. वो methodology में क्या हो सकता है? ट्रस्टवर्दी रिसर्च डिजाइन चाहिए, ट्रस्टवर्दी इंफॉर्मेशन चाहिए तो सैम्पलिंग प्रॉपर होना चाहिए, सैम्पलिंग प्रॉपर चाहिए तो प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी पता चाहिए, नॉन प्रोबेबिलिटी दोनों पता है तो आपको सैम्पलिंग फ्रेम पता होनी चाहिए, फिर सैम्पलिंग मेथड, फिर स्ट्रक्चर्ड इंस्ट्रूमेंट फॉर योर डेटा कलेक्शन, ये सब चीजें क्लियर पता होनी चाहिए, तभी डिपेंडेबल इंफॉर्मेशन पता चलेगी. फॉर एग्जाम्पल, आई वांटेड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द सेटिस्फैक्शन ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स फॉर MBA प्रोग्राम इन पुणे यूनिवर्सिटी. That is what is my objective. Example ले रहा हूँ. How the dependable information can be generated only if you know the research methodology properly. इसका example दे रहा हूँ मैं. आपको क्या पता करना है? What is the student satisfaction level for MBA program from Pune University? मैंने सिर्फ क्या किया? मैंने सिर्फ रिम के 25-50 लोगों को पूछा what is your satisfaction level, and I have come up with the outcome that Pune University, because you all are also Pune University people, right? तो मैंने अगर उसको पूछ के आउटकम निकाला, क्या मैं जनरलाइज दैट आउटकम टू द एंटायर पुणे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स? एब्सोल्युटली नो, राइट? अगर मैं करता हूँ, फिर भी मैं अगर वो रिसर्च पूरा करता हूँ विदाउट नोइंग द मेथोडोलॉजी, हो सकता है ना, मतलब if we assume that I don't have any knowledge about research methodology and I completed the research तो किया, सर्वे किया, स्ट्रक्चरल क्वेश्चनर भी बनाया, सर्वे लिया, एनालिसिस किया, आउटकम भी निकाला, but that information is not dependable information. I cannot be dependent on that because proper methodology is not followed up. So characteristics of good research methodology should be, it should create a generate and dependable information जिस पे मैं trust कर सकता हूँ. Purpose clearly defined, your research objectives should be clearly defined. आप research क्यों कर रहे हो? For example, summer internship में जा रहे हो, right? Summer internship में जा रहे हो आप, and you are doing research. First most thing you need for
for conducting any kind of research is research problem. सबसे important आपको क्या चाहिए होता है? Research problem. अगर research problem ही नहीं है तो आप research नहीं कर सकते हो, right? So what is the purpose of your study should be properly defined before you go for any kind of research studies. क्योंकि questionnaire purpose clear नहीं है तो which kind of questions you will put in your survey? Survey की बात करते हैं फिलहाल. There are so many other methods of collecting data, right? Survey की बात करते हैं आपको समझ में आ जाए. Purpose ही clear नहीं है तो what kind of questions you will put in your questionnaire? What kind of data you will collect and what kind of outcome you will get? Sometimes what happens, you started studying consumer behavior for particular product and you will end up saying that consumer perception. कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी करने जाते हो और कंज्यूमर परसेप्शन का आउटकम आ जाता है, बाद में पता चलता है दिस प्रोडक्ट इज नॉट प्रेफर्ड बाय द कंज्यूमर, राइट? So perception is a part of behavior. Perception is not measuring the entire behavior of consumer. So your purpose of study should be properly defined so that you will collect the information by proper and most suitable variables. Variables correct वाले आप लिस्ट कर सकते हो अगर आपको पर्पस क्लियरली डिफाइन है. Then you just read it. You research process detail. You should your research design should have detailed process of your research explained. Then research design thoroughly planned. You know research design, what is it? Then high ethical standards applied. Marketing research also requires the high ethical standards. You know research ethics also. It has been also taught to you. What do you mean by research ethics? Data misuse नहीं करना है. किसी का information should not be shared with any irrelevant person without any reason, right? You cannot force any respondent for responding and all. So ethics are so many things. You cannot present biased findings and all. Biased findings नहीं होनी चाहिए. Limitations frankly revealed होना चाहिए. You should never hide what are missing out in your research. It should be properly listed. Then analysis adequate for decision makers need. Yes, as I was talking to you, it should give a detailed information. सिर्फ एडवर्टाइजिंग करना है इससे नहीं चलेगा काम. एडवर्टाइजिंग के साथ साथ क्या क्या करना है वो सब भी आपका रिसर्च डिजाइन बताना चाहिए. कौन से मीडियम से, कौन से टारगेट के ऑडियंस को, कितने दिन में, कितने दिन के लिए कैंपेन, क्या कम्युनिकेशन देना है, कौन सा मैसेज देना है. देयर आर फ्यू टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट. बहुत सारे टाइप्स होते हैं. एक एक वर्ड जो मैं बोल रहा हूँ ना एक एक सब्जेक्ट है. अगर एडवर्टाइजमेंट पे बात करना शुरू कर देंगे तो एडवर्टाइज के टाइप्स पे ही 2-3 दिन निकल जाएंगे. What are the types of advertisements are there and what message you give through different kinds of advertising. Sometimes एक एग्जांपल देता हूँ, बाद में आप अगर क्यूरियस हो तो खुद जाके ढूंढ लेना what are the types of advertisement. पता भी होंगे कुछ लोगों को जिनको याद है या फिर पढ़ाया गया है नहीं, आई डोंट नो, बट मेरे दिमाग में आए तो मैं बता देता हूँ. कुछ एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं जो आपको सिर्फ प्रोडक्ट की याद दिलाने के लिए बनाए जाते हैं. सिर्फ याद देना है आपको, राइट? ये प्रोडक्ट है करके. Some of the advertisements are there which gives you a technical knowledge of entire product. तो वो आपको प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं. कुछ सिर्फ रिमाइंड करने के लिए होते हैं, कुछ प्रोडक्ट डिटेल्स करने के लिए होते हैं, कुछ एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं इमोशनली अट्रैक्ट करने के लिए. सो रिमाइंडर एडवर्टाइजमेंट, टेक्निकल एडवर्टाइजमेंट, देयर आर सो मेनी अदर टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट. जस्ट गो टू द गूगल एंड फाइंड आउट. सो योर इंफॉर्मेशन शुड नॉट बी half information, because half knowledge is always dangerous for your limited knowledge is always dangerous. Half knowledge is also always dangerous for decision makers. So decision makers should get the proper and adequate knowledge through your research. Then findings presented clearly, unambiguously, right? Your findings should not be confusing नहीं होनी चाहिए. findings clear findings होनी चाहिए. And bills should be presented clearly. It should be a clear statement without any confusion, doubt or creating dilemma in the decision maker's mind. आप डिसीजन लेने के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें भी कंफ्यूजन है, तो आप जो फाइंडिंग्स इंटरप्रेट करोगे वो प्रॉपर होने चाहिए. देन कंक्लूजन शुड बी जस्टिफाइड. योर डेटा एनालिसिस शुड जस्टिफाई योर कंक्लूजन. नहीं तो डेटा एनालिसिस में कुछ और किया है, कंक्लूजन में कुछ और लिख दिया है. दैट काइंड ऑफ रिसर्च डिजाइन विल नॉट क्रिएट अ रिक्वायर्ड suitable and effective information. Then researchers experience reflected. It should reflect. Your proper research design should reflect your experience along with your data analytics. जो डेटा से निकलेगा वो तो ठीक है, बट रिसर्चर्स के खुद के कुछ ऑब्जर्वेशंस होते हैं while you do any kind of research study. तो आपके ऑब्जर्वेशंस भी उसमें आने चाहिए. योर अंडरस्टैंडिंग्स should be reflected in your finding. आपको क्या समझा, आपने क्या समझा, आपने अपनी थ्योरी को, अपने नॉलेज को कैसे इंप्लीमेंट किया थियोरेटिकल नॉलेज के साथ.
and what is your experience you have learned through that research study. That also has to be reflected in the research design. So these are the characteristics of good research design. Any doubt? Any doubt, guys? No, sir. समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so let's talk about the scope of marketing research, right? So scope of marketing research, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने दूसरे डिविजन्स में भी पढ़ा है, तो मुझे पता नहीं कि मैं रिपीट कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ. अगर मैं कोई चीज रिपीट कर देता हूँ तो आप बोल देना सर ये हो गया है, नेक्स्ट वाला पॉइंट ले लो. ये पढ़ा है क्या हमने? No, sir. Have we discussed this? No, sir. Okay, so then we can go ahead with this. So if you really understand the meaning of word scope, if you really understand the meaning of word scope, you will understand the entire this circle, right? ये पूरा समझ जाएगा आपको अगर आपको पता है कि स्कोप का मतलब क्या है. Anyone who can tell me what do you mean by scope? Career. Extend to any area or particular area. Yes, How much it is, means how much it is extended in all the departments of research. how much it is applicable in various Or kind of areas, right? So scope Yes, means sir, yes. the utility, Means कहाँ तक फैला हुआ है? कहाँ तक ये जा सकता है, क्या क्या स्टडी कर सकता है, what comes under ages of this particular concept, right? What comes under ages of this particular concept, what it accompanies or what it consists of, ये सब मिलके क्या बनता है, मतलब ये किस चीजों से बना है, सब मिला के किन किन चीजों से बना है, ये कॉन्टेक्स्ट को जब आप स्टडी करते हो तो दैट इज स्कोप, राइट? सो स्कोप मीन्स व्हाट, व्हेन यू आंसर, एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंस. सर इम्पोर्टेंस ये है कि अगर हमें पता ही नहीं हो क्या चीज का कहाँ तक ये फैला है तो हम उस पर रिसर्च कैसे करेंगे. This is the importance. हाँ, yes. So when you talk about scope of XYZ thing, what do you mean by scope of MBA? MBA के scope क्या है? सर जिस हम किस किस फील्ड में जा सकते हैं आफ्टर MBA, लाइक इन हाँ, लाइक yes. मार्केटिंग में जा सकते हैं, R&D में जा सकते हैं सर, सेल्स में जा सकते हैं, ये सब स्कोप है सर. Okay. Potentiality कितनी है? I mean, it's all about finding out the potential and tapping that potential. Anyone else? Anyone else who wants to say something about scope? How do you understand scope? What is the scope of your MBA program? So whenever you answer, whenever you get the question, what is going to happen or what you are going to do with this thing, that describes the scope. आप MBA के साथ क्या कर सकते हो, मतलब MBA कहाँ एप्लीकेबल हो सकता है. तो what is the scope of your MBA? Scope of your MBA is like sales, marketing, finance, being manager, getting job, right? Being manager, getting jobs, these are scopes. Being placed, placement is one of the scope, isn't it? आपके MBA का scope क्या है? आप बोलते हैं ना, what is MBA के बाद क्या scope है मुझे, मैं MBA क्यों करूँ? What is the scope after MBA? What do you mean by scope then? Where can you utilize? Where can you utilize? Where can you utilize this particular MBA course? That is scope. So utility, where can you apply research studies? Where can you use research studies? That is scope for marketing research. In the sense, where can you use research studies in marketing field? Where can you use research studies in marketing field? Where can you conduct marketing research studies in the field of marketing? That is marketing research. So scope of marketing. What is importance? Importance means सर हम MBA क्यों कर रहे हैं, इससे करके क्या फायदा होगा? Yes. Why? Importance answers why. Why MBA? कोई क्या अगर why MBA, right? What after MBA means scope, and why after MBA is why MBA is the importance. Again, I repeat. What after MBA? What after doing MBA is scope of MBA, and why MBA is the importance of MBA. So tell me why MBA? What is the importance of MBA? So means to get a PG degree which will boost our confidence, and various industry required some educational criteria to be selected Right. in that. So why MBA का आंसर है to build your skills, to build, Yes. develop knowledge about management, to make you a manager by learning, improving on your technical personal skills. So importance का मतलब होता है why, scope का मतलब होता है what.
So you got it? Clear about this meaning scope of marketing research, Yes, sir. Yes, right? So if I ask you about what do you mean by importance of marketing research, then what? So importance में क्या आएगा? Can anyone tell me what are the importance? 2-3 importance let's discuss. Why it is important? सबसे important चीज होती है. Why it is important? बोलो. equitable knowledge of market. Okay. Sir, estimate of market demand. Market demand estimation, knowing your competitors, knowing your product yourself better, right? Competition address. तो हाँ, अभी आपको समझ में आएगी मैं क्या बोल रहा हूँ. फाइन, लेट्स प्रोसीड. उसमें नहीं जाते फिलहाल, बाद में देखते हैं उसको, राइट? So the importance is something what is going to happen, where you are going to use it, right? And scope is something what you can do with that particular thing. So what you can do with marketing research. जब आप रिसर्च को मार्केटिंग फंक्शन में कहाँ यूज कर सकते हो ये जानोगे तब आपको पता चलेगा व्हाट आर द स्कोप्स ऑफ मार्केटिंग रिसर्च. सो इज देयर एनीथिंग राइट दैट आई नीड टू टॉक टू यू अबाउट दिस सर्कल नाउ? Do I need to explain this gola? You all have watched PK movie, right? ये गोला बड़ा खतरनाक लोगों का गोला है. वैसे ये गोले हाँ ये मोटिवेशन रिसर्च. मोटिवेशन रिसर्च आपको हिंट दे confusing दीजिए. है. ठीक है, बताता हूँ मैं. अंडरस्टैंड, मैं सभी पॉइंट्स बताता हूँ फॉर दैट मैटर, बिकॉज if you understand what is the scope of marketing research, it will be very easy for you to understand what kind of research problem you are going to frame in your summer internship. मैं फिलहाल समर इंटर्नशिप को टारगेट करके आपको बता रहा हूँ क्योंकि आई नो दैट द लेटेस्ट एप्लीकेशन ऑफ मार्केटिंग रिसर्च कैन हैपन इन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ओनली. आप सबसे जिंदगी में सबसे पहली बार मार्केटिंग रिसर्च कहाँ एप्लीकेबल करोगे तो दैट गोज टू द समर इंटर्नशिप, राइट? उसके बाद जो होगा वो बात की बात है, होगा या नहीं होगा आई डोंट नो. But let's understand the scopes. Scope means what? Scope means the areas in which you can implement marketing research, the areas in which you can conduct marketing research studies. So देखो, when you talk about product research, प्रोडक्ट के बारे में क्या क्या रिसर्च किया जा सकता है बताओ. व्हाट कैन यू रिसर्च अबाउट प्रोडक्ट? प्रोडक्ट की सर फिजिकल क्वालिटीज, क्वांटिटीज, अपीयरेंस कैसी होनी चाहिए, फिर से दैट इज वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट. प्राइस. प्राइस तो प्राइसिंग रिसर्च में आएगा. मींस प्रोडक्ट रिसर्च में क्या क्या आएगा? सिमिलर प्रोडक्ट मींस यस भागीरथ. सम इनोवेशंस सर, इनोवेटिव आइडियाज. हाँ, इनोवेशन, परफेक्ट. इनोवेशन सर इसमें मेन इंपॉर्टेंट है. अंडरस्टैंड. हाँ, रिसर्च डन फॉर इनोवेशन, रिसर्च डन फॉर प्रोडक्ट डिजाइन, रिसर्च डन फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, research done for identifying different variants of your product, right? Research done related to comparison of your product line width, product depth, see product line width, product line depth with your competitors product, right? आप प्रोडक्ट लाइन में मतलब आपके प्रोडक्ट लाइन में कितने प्रोडक्ट है एंड आपके कॉम्पिटिटर्स के लाइन में कितने प्रोडक्ट्स है उसका कंपैरिजन करके इवैल्यूएशन करते हो. तो दैट इवैल्यूएशन स्टडी इज आल्सो रिलेटेड टू प्रोडक्ट स्टडी, राइट? अगर आप प्रोडक्ट लाइन विड्थ का कंपैरिजन बाहर के साथ करते हो तो वो मार्केट रिसर्च बन जाता है. और सेल्फ के लिए प्रोडक्ट इनोवेशन, प्रोडक्ट टेस्टिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हो, वेरिएंट्स डेवलपमेंट करते हो तो वो सेल्फ के लिए होगा तो वो मार्केटिंग रिसर्च में आता है, राइट? सो द प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च करने के लिए बहुत सारा स्कोप है. देयर आर रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स इन मोस्ट ऑफ द कंपनीज. स्पेशल डेडिकेटेड R&D डिपार्टमेंट्स आर देयर इन मोस्ट ऑफ द कंपनीज for product research. The what an R&D department, right? For R&D department of pharmaceutical companies, they hire special scientist people for developing new products, coming up with new ideas, new innovations, or improving the existing products, right? So whenever you go in summer internship, you have an opportunity to work on a product research. So product research, consumer research. Where how can you do consumer research quickly? So by studying consumer behavior. कंज्यूमर रिसर्च में एक कंज्यूमर बिहेवियर आता है, दूसरा क्या आएगा? डिवाइडिंग ऑन सेगमेंटेशन. यस, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग कैसे होती है,
related, that is also a consumer behavior. Yes. कंज्यूमर बिहेवियर में मतलब जाएगा ना सब, जैसे कंज्यूमर बाइंग पैटर्न, साइकोग्राफिक, डेमोग्राफिक एस्पेक्ट. So I'll tell you some of the applications of marketing research in consumer research. In consumer research, you can study consumers' behavior, consumers' perception, consumers' attitude, consumers' preference, consumers' satisfaction, consumers' choices, and such kind of things about any kind of product. So consumer research is the most common marketing research. क्या consumer research is the most common marketing research, most frequent kind of marketing research. सबसे ज्यादा marketing research इसी में होते रहते हैं, because people are always curious to know whether the customers are satisfied, whether they are interested, whether they are that, whether they are this, right? ये चलते रहता है. So consumer research is the most broader area of marketing research which you can target for your own summer internships to identify research problems. बाद में ये मत पूछना research problem कहाँ से आता है, किसी को मत पूछो ये क्वेश्चन. ट्राई टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ हियर ओनली, फ्रॉम वेयर रिसर्च प्रॉब्लम्स कम्स. आपको बीआरएम में भी पढ़ाया गया होगा रिसर्च प्रॉब्लम कहाँ से आता है. रिसर्च प्रॉब्लम ऑलवेज कम्स विद इन द रिसर्चर, based on his knowledge of that field, based on his interest area, based on his external intellects like news, newspaper sources, television news, various reports of companies, right? ये सब sources है, journals, different research reports already published by intellectual people in the market. ये सब sources है research problem के. And along with that, the business problems and business opportunities. These all are the business issues. Daily business issues are the sources of research problem. तो वहां से research problem आएगा. आपके इंटरेस्ट एरिया के ऊपर डिपेंड है. फॉर एग्जांपल आप मार्केटिंग स्पेशलाइज्ड हो तो आपका इंटरेस्ट के भी फाइनेंस की रिसर्च करने के लिए जाएगा क्या? नो, नहीं. तो आपको क्या करना चाहिए? आपके इंटरेस्ट एरिया के आजू बाजू में रिसर्च प्रॉब्लम ढूंढना चाहिए. एंड देन इट डिपेंड्स ऑन विच प्रोफाइल यू आर वर्किंग फॉर समर इंटर्नशिप. वो आपका नॉलेज प्रोफाइल एंड दिस फील्ड्स, इन सबको एक साथ रखोगे तो आपको रिसर्च प्रॉब्लम मिल जाएगी. For example, you have got placed with Amul Milk and you got to know that your job profile is to go and talk to a dealers about their satisfaction, dealers of Amul Milk, for their satisfaction or for their queries. That is your job, dealer management, channel management. Then your research problem would be, you would be interested to know why Amul Milk is, or what is preference given by dealers or retailers or wholesalers in their business for competitors brand. मतलब रिटेलर अमूल मिल्क को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं बेचने में, या किसी और के दूध को या पनीर को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं बेचने में. ये एक रिसर्च प्रॉब्लम हो सकती है. सो कंज्यूमर रिसर्च, राइट? समझ में आ रहा है? am I reaching to you? Yes sir. Okay, so other people, any question, any query? Who all are there? Saheli, Ganesh Roman, Harshita, Monica. Yes sir. No. Are you getting my point? समझ में आ रहा है? Yes sir. पता चले 3:30 के टाइम बाद में पता लगा 1.5 घंटा तो वेस्ट ही हो गया, कुछ मतलब ही नहीं होगा अटेंड करके. सो डोंट वेस्ट योर टाइम. अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो. इफ आई एम मूविंग आउट ऑफ द टॉपिक, गेट मी ऑन द ट्रैक. इट्स यूअर्स जॉब आल्सो, राइट? अगर ट्रैक कहीं भटक रहा है तो वापस लेके आना आपका काम है. चलो, सो द पॉइंट वी वे डिस्कसिंग इज कंज्यूमर रिसर्च. दो तीन रिसर्च के जो एरियाज है उसको अच्छे से समझाऊंगा, सो दैट बाकी के आपको अपने आप पता चले. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक टू यू अबाउट प्रोडक्ट रिसर्च, मैंने बताया वेयर यू कैन इंप्लीमेंट मार्केटिंग रिसर्च टू स्टडी अबाउट द प्रोडक्ट, टू मेक द रिसर्च अबाउट द प्रोडक्ट. क्या क्या एरियाज हो सकते हैं? कंज्यूमर रिसर्च, आई हैव टोल्ड यू फ्यू एरियाज ऑफ कंज्यूमर रिसर्च. बाय व्हाट यू कैन इंप्लीमेंट रिसर्च इन कंज्यूमर स्टडीज. सो परसेप्शन, एटीट्यूड, बिहेवियर, ये सब चीजें रिपीट नहीं करूंगा. नोट करते जाइए, इसलिए बोल रहा हूं मैं, नोट करते जाइए. ये क्वेश्चंस एग्जाम में भी आ सकते हैं. व्हाट आर द वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ कंज्यूमर रिसर्च? कंज्यूमर रिसर्च में क्या क्या आता है? और फॉर एग्जांपल, अ रिसर्च स्टडी कंडक्टेड टू अंडरस्टैंड द कंज्यूमर to understand the satisfaction of XYZ category of people for XYZ product comes under which category? ऐसा क्वेश्चन आएगा, फिर क्या करोगे? सेटिस्फैक्शन की बात आती है तो वो कंज्यूमर रिसर्च है. उसमें प्रोडक्ट भी नाम लिखा आएगा, प्राइसिंग भी नाम लिखा आएगा, तो यू विल गेट कंफ्यूज कि उसको कौन से कैटेगरी में रखना है. सो आपको समझना जरूरी है एंड कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है. एप्लीकेशन अपने आप पता चल जाएगा, वो कोई बात नहीं है, राइट?
So product research, consumer research, packaging research. Now you tell me, what are the areas in which you can implement research to study the packaging related aspects of product, packaging related aspects of business? Quickly, yes. So quality standards, Packaging का quality standard of packaging or quality standard of this, that can go to the product also, right? तो पैकेजिंग में अभी जैसे डेयरी मिल्क का एक स्कैंडल हुआ था ना, जिसमें उनका पहले पेपर और वो So packaging quality, हाँ packaging standard. हाँ, तो उस हिसाब से मतलब Yes, perfect. Packaging quality, packaging standard. और बोलो, packaging में क्या क्या आता है? तो लुक, डिजाइन, Looks, design. कन्वीनियंस ऑफ यूजिंग इट, लाइक कुछ होता है कि हम लोग डायरेक्ट पैकेट से ही खा सकते हैं, या फिर प्रोडक्ट हिसाब से प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो पैकेजिंग पे भी हम लोग बहुत ध्यान देते हैं. ओके, और क्या रिसर्च हो सकता है, और कौन सी चीज पे रिसर्च हो सकता है? सर देयर डिजाइन लाइक अब न्यू है सर, हम पहले क्या अभी क्या करते हैं कि सर उसे एक कुरकुरे की पैकेट है तो उसे सर हम दो भाग में कर देते हैं सर. इसमें एक जिप आनी चाहिए कि आप उस जिप से खोलोगे तो वो एक ही पार्ट में रहेगी, आपको सर रिसाइकिल करने में बनेगा, नहीं तो आप दो पार्ट में रिसाइकिल करते हो उसको सर. Okay, so it's about utility of material for packaging, material research, packaging material research हो सकता है, packaging design research हो सकता है, packaging quality research हो सकता है, packaging price, packaging की cost पे, cost of packaging पे research हो सकता है, right? What else? सर जो भी फ्लिपकार्ट में पैकेजिंग होती है सर वो पर स्क्वायर फीट के मुताबिक होती है सर. वही पैकेजिंग प्राइसिंग पे हो सकता है. बहुत पैकेजिंग में रिसर्च कहाँ इंप्लीमेंट हो सकता है? पैकेजिंग डिजाइन पे हो सकता है क्या? यस सर, डिजाइन में भी हो सकता है. एग्जांपल सर एग्जांपल जैसे कि सर कोई भी मोबाइल की जो बॉक्स आती है सर वो ऐसे डिजाइन करते हैं जो मोबाइल की साइज होती है सर उसके मुताबिक सर वो डिजाइन करते हैं. या फिर सर कोई भी चीज जो कुरियर की पैक होती है सर तो वो बड़ी चीज को बड़ी में पैक करके देते हैं, छोटी को छोटी में पैक करके देते हैं. सर वो डिजाइन सर वैरी करते रहता है प्रोडक्ट साइज के सर अकॉर्डिंग. You first of all understand the difference between packaging and packing. Okay. आपको बताया गया है, नहीं बताया गया, I don't know, but there is difference between packaging and packing. So what do you mean by packaging? Means the process. Package. No. Package is something which is just the external cover of the useful product. Just the external cover of useful product. For example, मोबाइल बॉक्स. मोबाइल को हम पैकेजिंग के जगह पैक बोलेंगे, पैक राइट. पैकेज दैट्स नॉट पैकेजिंग, दैट इज अ पैकेट. बट ठीक है, वो बाद में समझ लेना, आप लोग डिफरेंशिएट करो. मैं आपको बताता हूँ पैकेजिंग रिसर्च कहाँ हो सकता है. जैसे आपने बोला क्वालिटी में हो सकता है, साइज में हो सकता है, शेप में. पैकेजिंग रिसर्च इन शेपिंग. हार्पिक का एक प्रोडक्ट है, हार्पिक बॉटल, उसका शेप टेढ़ा करके आया है, राइट? So how they got to know that what is the problem with that application of Harpic, right? So packaging research हो सकता है कंटेनर के डिजाइन में भी. Always understand, packaging, customers are not interested that much into packaging. Customers are not interested that much. इतना कस्टमर का इंटरेस्ट पैकेजिंग में नहीं है. Customer is interested about the value of product. But the packaging is most important in terms of marketers' perception because it's a cost for them. Packaging क्या है? It's a cost for them. So package them. For example, you go to the DMart, you wanted to purchase a edible oil. आपको तेल लेना है, खाने का तेल. आपका इंटरेस्ट तेल में है या तेल जिस ड्रम में उस ड्रम में है? What do you want? What is your interest? आप पैराशूट की बोतल लेने जाते हो. फॉर एग्जाम्पल आप जैम लेने के लिए जाते हो, आपका इंटरेस्ट जैम में या कांच के बोतल में? Right? For you, actually, absolutely, packaging is very important. So, but for consumers, packaging is not that important. Consumers के लिए product में ज़्यादा interest होता है. So, packaging ऐसी होनी चाहिए which is most attractive, most convenient for the use of that product. Product को use करने में packaging conveniently use में आनी चाहिए. From that dimension of packaging, the Harpic got an idea to convert their neck of their bottle into a bend shape, which is useful to apply that product, right? So packaging में design, shape, size, durability, color, material, which material has to be used.
Nowadays most of the researchers are running around the packaging material because plastic सबको problem में डाल रहा है. Glass बहुत महंगा है. Try to understand. Glass is very much costly. Plastic is very much dangerous for the natural environment. But is there any other material available? If you talk about the steel and iron, steel get reacts with most of the things. Steel का reaction हो जाता है बहुत सारी चीजों के साथ. So packaging material is always a interest areas for marketers to innovate in, right? तो अब क्या आ रहा है? पैकेजिंग मटेरियल में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं एंड पैकेजिंग मटेरियल के साथ साथ कंटेनर्स के शेप में भी होता है. टेट्रा पैक आ रहे हैं, राइट? टेट्रा पैक्स आ रहे हैं. सम बॉटल्स, बॉटम अप बॉटल क्या होते हैं? टॉप, क्या बोलते हैं उसको? टॉप डाउन बॉटल है क्या रे? क्या होता है जिसका, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज दैट? जो बॉटल हम कुछ शैम्पूज के बॉटल आ रहे हैं, बॉटम सब बोलते हैं उसको, शायद क्या बोलते रे? बॉटम्स अप तो वो ड्रिंकिंग में होता और है. हाँ, बॉटम अप तो पीने के टाइम पे बोली. ये सब बराबर पता होगा आपको. बॉटम सब कहाँ बोलते हैं ये बराबर पता. बॉटल को क्या बोलते हैं वो नहीं पता होगा आपको. एक बॉटल होता है जिसका ओपनिंग नीचे होता है. हेलो, जिस बॉटल का शैम्पूज के मोस्ट ऑफ द बॉटल, शैम्पू के बॉटल जो होते हैं ना, उसका ओपनिंग नीचे होता है और वो उल्टा रखा जाता है, तो उसको कुछ नाम है यार. सर फेस वॉश में भी होता है. फेस वॉश में भी है, फेस वॉश में भी है. ये बहुत सारे बॉटल्स में है. रखने का शेप ही नीचे आ जाता है. तो ये कहाँ से पता चला है? वो हमेशा वो नीचे जाके बैठता है. शैम्पू उल्टा करने के टाइम पे प्रॉब्लम होता है कस्टमर्स को कन्वीनियंटली निकालने के लिए, तो वो रखने के टाइम पे उल्टा रखो, सिर्फ ढक्कन ओपन करो, फिर आपको मिल जाएगा इजीली. सो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ पैकेजिंग रिसर्च. पैकेजिंग रिसर्च से ही वो पता चला है लोगों को. अब वो बॉटल का नाम ढूंढो आप, उतना तो करो यार. हर चीज मैं याद आएगा मुझे, बट आई नीड टू इन्वेस्ट सम मिनट्स ऑन दैट, फ्यू मिनट्स ऑन दैट. ऐसे ही कुछ बोला जाता है, बॉटम अप्स या टॉप्स बॉटम, टॉप टू बॉटम. तो ऐसा ही कुछ नाम है उस बॉटल का. तो ये सब पैकेजिंग के इनोवेशन है. समझ में आ रहा है कहाँ कहाँ पैकेजिंग अप्लाई कर सकते हो? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके. सो एक बात और समझो, आपने कोलगेट के पैकिंग को ऑब्जर्व किया है क्या? कोलगेट टूथपेस्ट या फॉर दैट मैटर कोई भी टूथपेस्ट के पैकेजिंग को, उसका जो पैकेजिंग होता है ना, पैकिंग होता है ना, पैकेजिंग बोल सकते हैं उसको, जो होता है ना, वो नेक देखी कोलगेट की बोतल की, राइट? कोलगेट की बोतल की नेक है ना, उसका जो विड्थ डायमीटर होता है, डायमीटर जहां से कोलगेट बाहर आता है, राइट? वो डायमीटर पे रिसर्च करने के लिए इनको सालों साल लगे कि ये नेक का डायमीटर कितना रखना चाहिए. बिकॉज वो डायमीटर बहुत कम रखा तो कंजम्पशन ही कम हो जाएगा कोलगेट का. कोलगेट का बॉटल खत्म ही नहीं होगा लोगों को. वैसे लगता कितना है कोलगेट अपन को? वी नीड इट ए पी साइज अमाउंट, बहुत कम लगता है, राइट? बट एडवर्टाइज में तो पूरा दिखाते हैं कि ब्रश भर के रखना चाहिए यहां से वहां तक. तो दैट इज अगेन अ काइंड ऑफ पैकेजिंग रिसर्च. जो प्रोडक्ट खत्म भी होना चाहिए. प्रोडक्ट अगर खत्म नहीं होगा तो परचेस कौन करेगा तुम्हारा कोलगेट? तो उसके लिए वो डायमीटर पे रिसर्च किया जाता है. हर चीज में रिसर्च हो जाती है एंड इट इज एप्लीकेबल अ लॉट इन वेरियस थिंग्स. चलो, सो दे क्लियर अबाउट दिस 3 पॉइंट्स. Yes. सो टेल मी अबाउट प्राइसिंग रिसर्च नाउ. ये समझना जरूरी क्यों है? बिकॉज ये डिटेल में समझोगे ना तो आपको समर इंटर्नशिप में प्रॉब्लम नहीं आएगा. टेल मी अबाउट प्राइसिंग रिसर्च, कहाँ पे कर सकते हो? Sir, pricing research would be a point where the company decides or let's say think about at what price or what price the consumer wants to pay for that product. Yes, to decide suitable price for your product. What is the mindset of customers to pay for that product? What amount customers can pay for that product? वो डिसाइड करने के लिए जो रिसर्च होगा वो प्राइसिंग रिसर्च है. प्राइसिंग में कॉस्ट आता है. कॉस्ट इज अ वेरी बिग कंपोनेंट ऑफ प्राइस, राइट? सो द कॉस्टिंग रिसर्च which will determine the product cost and all. You will always try to keep your pricing at minimum level. कम से कम रखने का कोशिश करोगे as a marketer, because you know that at least some products, some market runs around the pricing itself. इंडिया में तो बहुत सारे मार्केट प्राइसिंग के आगे पीछे चलते हैं. वैसे प्राइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर थ्रू आउट द ग्लोब.
बट इंडिया में प्राइस को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, राइट। फ्री में है तो मतलब फोकट इज द बेस्ट प्राइस इन इंडिया, फोकट चाहिए, फ्री का प्राइस बेस्ट प्राइस है इंडिया में, राइट। तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स है, कॉम्पिटिटर्स प्राइसिंग रिसर्च, योर सेल्फ एनालिसिस फॉर प्राइसिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइसिंग, और हाउ टू सिलेक्ट द प्रॉपर प्राइसिंग फॉर योर प्रोडक्ट, दिस ऑल आर द एस्पेक्ट्स। एडवर्टाइजिंग रिसर्च, एडवर्टाइजिंग रिसर्च में बहुत एप्लीकेशंस हो सकते हैं रिसर्च के। एक तो डिसाइड अबाउट विच मीडिया, decide about what content to be delivered to the customers, you need a research to decide about what is the impact of your campaign. You have run the campaign for that matter for 6 months or a year, but you don't know whether the campaign was useful or no, कोई मतलब ही नहीं है। So research is not only applicable to take the decisions, but research is also applicable to evaluate the decisions, whatever happened after taking that decision. You decided to run a marketing campaign for your product, 6 महीने 1 साल के बाद पता करना तो जरूरी है ना कि कुछ चेंजेस हुए या नहीं हुए, मेरा पैसा वेस्ट गया मार्केटिंग कैंपेन का। सो द इवैल्यूएटिंग ऑफ मार्केटिंग कैंपेन, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स, यू नीड अ रिसर्च। सो टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग, टू क्रिएट द एडवर्टाइजिंग, टू इनोवेट द एडवर्टाइजिंग, टू सिलेक्ट द मीडियम टू डिलीवर द एडवर्टाइजमेंट, ये सब चीजें आपको एडवर्टाइजिंग रिसर्च में पढ़नी है। सेल्स रिसर्च, सेल्स फोरकास्टिंग, ट्रेंड एनालिसिस, ये बहुत कॉमन चीजें है सेल्स रिसर्च में। कहा है सेल्स फोरकास्टिंग एंड ट्रेंड एनालिसिस एंड डिमांड एस्टिमेशन, ये 3 रिसर्च बहुत ज्यादा फेमस है सेल्स रिसर्च की बात करोगे, राइट। मार्केट साइज, मार्केट सेगमेंट, ये 2 चीज और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है सेल्स रिसर्च में। व्हाट कम्स इनटू द सेल्स रिसर्च, सो व्हाट कम्स इन सेल्स रिसर्च, ट्रेंड, डिमांड, मार्केट साइज, मार्केट सेगमेंट, ये सब चीजें, राइट। Then distribution research. Distribution research, you mean distribution research is all about level of distribution, and some of the part of supply chain is also into a distribution research, right? So depends on the kind of your product, what kind of level of distribution channels you select. There are 5 levels of distribution channels. One is about like from company to customers, then company to wholesaler to customers, company to showroom to customers, company to wholesaler, retailers to customers, companies to wholesalers, retailers, agents, distributors, and then ऐसे चीज में there are levels of distribution. So you will have to have a research to select what kind of distribution channel you are going to adopt in your business. आपके लिए applicable कौन सा है, फिर applicable होने के बाद distribution channel का evaluation भी किया जाता है. For there also you will need a research whether it is a effective distribution channel or you need some improvement in your distribution channel. There you need a research. Policy research is all about documentation, is all about talking about rules regulations of your company. यहाँ पे for marketing department, for marketing policies, for marketing strategies, what kind of policies you are framing, based on which you will decide what kind of policy research you need to do. So to set up your marketing policies, to set up rules and regulations of your marketing department, you need a policy research. International marketing research is about, again, this talks about the scope for your company in external market. It means to identify the market potential. International marketing research is to identify market potential for your product in overseas market. International market research is useful to identify what are the legal restrictions, rules, requirements of estimating business in that particular country wherever you want to expand yourself, right? So it's all about that particular thing. समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? Yes. All of you clear? Any difficulty? No. कैसे ना theoretical subject में बोलने के लिए बहुत ज्यादा है, और ये पॉइंट मैं सिर्फ आपको दिखा के छोड़ दूंगा तो आपको क्लैरिटी नहीं आएगी, मुझे बोलना जरूरी है. You may think that it may be faster, but I have to speak it, क्योंकि मैं सिर्फ ये दिखाऊंगा फिर इतना बोलूंगा स्कोप ऑफ मार्केटिंग रिसर्च इज प्रोडक्ट रिसर्च, कंज्यूमर रिसर्च, खत्म करने को मैं 5 मिनट में खत्म कर दूंगा, बट आई डोंट नो हाउ मच जस्टिस आई एम गिविंग टू द कॉन्सेप्ट. तो स्कोप तरीके से समझना चाहिए. सिर्फ मैं आपको ये बोल दूंगा इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च में मार्केट रिसर्च अप्लाई होता है, एंड इफ समवन आस्क्स यू वेयर डू यू यूज मार्केटिंग रिसर्च इन इंटरनेशनल मार्केट, क्या बोलोगे? क्लियर टू ऑल? सपोज अगर कोई इंडियन कंपनी है तो उसके प्रोडक्ट को okay, yes, you can go ahead. I thought you asked about IMR.
हेलो। हाँ सर, मुझे लगा आपने पूछा वो इंटरनेशनल मार्केट रिसर्च के बारे में। Right. वही my objective of describing these things in too much detail with bit faster speed is just to make you aware about the detail thing, right? तो आप थोड़ा grasping capacity बढ़ाओ, सुनने का कैपेसिटी बढ़ाओ, right? So when we talk about motivation research, right? Motivation research is having a multiple dimensions. In context of marketing research, you need to understand what motivates your customers to purchase your product, right? What motivates your marketing team people to perform better? What motivates you to come up into the new segment, right? So motivation research is about identifying the opportunities. Motivation research is about identifying the opportunities for yourself, which motivates you to come up with new ideas, new products, new segment, and new benefits for your customers, right? So there also, if you really want to make yourself energetic, motivated, you need to conduct the research, and research will help you to be motivated. If your marketing department is continuously looking after the new opportunities, you will feel motivated because you will see the opportunities दिखती है तो you will tap it, isn't it? So that way, and see, motivation research is applicable in a different angle. Google wiggle करोगे तो वो कुछ और मीनिंग दिखाएगा या फिर सिमिलर दिखाएगा, I don't know, but कुछ motivation research is applicable into the HR domain also. There you need to motivate your people a lot. So it is having context of awards, rewards, recognition, appreciations, appraisal, and all, right? So those things can be studied with the motivation research in the field of marketing. Then market research itself, you all know, right? Market research is nothing but the market research industry of India, of our country. So marketing research is applied in entire market research industry. वहाँ पे भी क्या होता है, marketing research होता है. So that's also a scope, and I think you must be taught about some kind of marketing research profiles. Syndicated research report, customized research report, ये पढ़ाया है क्या आपको? मैंने ही शायद कई एक बार डिस्कस किया था, आई रिमेम्बर, राइट? सर रिपीट करना है तो। सिंडिकेटेड मार्केट रिसर्च, कस्टमाइज्ड मार्केट रिसर्च रिपोर्ट, ये जो चीजें होती है हमने डिस्कस किया है एक बार, मेरे याद, जहाँ तक मुझे याद है मैनेजमेंट फंडामेंटल्स में मार्केटिंग रिसर्च का जब टॉपिक निकला तो मैंने एक ब्रीफ दिया था आपको सर, ऐसे मतलब थोड़ा सा जस्ट हाईलाइट ही किया था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे भी हाईलाइट का ही जरूरत है। वो आपको मार्केटिंग रिसर्च आगे एक पूरा के पूरा चैप्टर है हमको इसी सब्जेक्ट में, दैट इज टॉकिंग अबाउट मार्केटिंग रिसर्च इंडस्ट्री। तो तब हम डिटेल में समझेंगे विच आर द टॉप प्लेयर, व्हाट इज मार्केट रिसर्च इंडस्ट्री साइज। कल शायद मैंने आपको साइज और शेयर में डिफरेंशिएशन बताया है, राइट? या सर, साइज, इक्विटी, शेयर। ग्रेट। सो वो अभी मैं अगर वर्ड रिपीट करता हूँ तो यू विल गेट टू नो दैट व्हाट इज द साइज ऑफ मार्केट रिसर्च इंडस्ट्री इन इंडिया। ये आपको क्लियरली डिस्क्राइब करूंगा मैं आने वाले चैप्टर्स में, सो देयर वी विल अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे छोड़ देते हैं फिलहाल उसको। देन मीडिया रिसर्च, सिमिलरली लाइक एडवर्टाइजमेंट में हम देखा कि विच एडवर्टाइजमेंट, विच मीडियम, ये सब चीजें हम देखें। मीडिया रिसर्च में भी नाउअडेज देयर आर सो मेनी थिंग्स टू बी स्टडीड, राइट? मीडिया रिसर्च इज ऑल अबाउट, लाइक आजकल बहुत होता है मीडिया सब कुछ मीडिया ही है, टीआरपी। मीडिया रिसर्च में सबसे लेटेस्ट ट्रेंड कौन सा है? टीआरपी ऑफ योर चैनल impacts the advertisement cost and advertisement quality. So media research in terms of impact of the media, social media research, TRP research, television media research, newspaper media research, इन सब चीजों में जहां जहां रिसर्च अप्लाई होगा मार्केटिंग के फील्ड में, that will help you to take marketing decisions. Which media you have to select, or what is the impact of media you have selected for your advertisement and marketing campaign, ये सब चीजें मीडिया रिसर्च में आ जाएगी। किसी का अगर फेसबुक पेज है तो वो एनालिटिक्स जो मिलता है, that is kind of analysis you have received based on which you can make some decisions कि कौन से ऑडियंस, कौन से एज ग्रुप को टारगेट करना चाहिए, कौन से एरिया को टारगेट करना चाहिए। ये सब चीजें आप फेसबुक के पेज एनालिटिक्स के बाद भी समझ सकते हो, उसको देखने के बाद भी समझ सकते हो आप ये चीजों को, राइट? एनी डिफिकल्टी इस गोले में? कोई डिफिकल्टी नहीं। Then this is similar kind of thing, but there are few things additional into that. The scope of research in digital marketing, scope of research in social media marketing, scope of research in e-commerce marketing. अब इसमें एक्सप्लेन नहीं करूंगा,
सिमिलरली जैसे डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की बात करोगे तो डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या स्कोप है, बैकलिंकिंग है, एसईओ है, कीवर्ड सर्चिंग है, इन सब चीजों में आप मार्केट रिसर्च अप्लाई कर सकते हो। सोशल मीडिया में बहुत सारा मार्केट रिसर्च अप्लाई किया जा सकता है। ई कॉमर्स में they do all the market research based on their own virtual models only. So e-commerce marketing research generally digitally ही होता है। Social media marketing research is also something which is studied digitally itself. So whenever you purchase something, Google, Amazon, Flipkart, and Snapdeal for that matters ask you the ratings, reviews, right? So that comes under e-commerce marketing research for that matter. E-commerce marketing research. So e-commerce marketing research, इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च हमने देखा है, सर्विसेज मार्केटिंग रिसर्च, मार्केटिंग रिसर्च इज आल्सो एप्लीकेबल इन सर्विसेज मार्केटिंग आल्सो, राइट? तो सर्विसेज मार्केटिंग में रिसर्च कहाँ एप्लीकेबल है? टू आइडेंटिफाई द सर्विस डिलीवरी, द गैप बिटवीन एक्सपेक्टेड सर्विस एंड गैप बिटवीन परसीव्ड सर्विस। ये वर्ड्स हेवी तो नहीं हो रहे हैं ना आपको? नहीं सर, पता है ये सब चीजें? सर्विस गैप क्या होता है, एक्सपेक्टेड सर्विस क्या होती है, परसीव्ड सर्विस क्या होता है? यस सर, यस। अभी सेमेस्टर 2 में हो तो इट इज एक्सपेक्टेड, ये आप लोगों को पता है। तो इसलिए जो पिछले सेमेस्टर में हुआ ना वो पढ़ना ज्यादा जरूरी भी था फर्स्ट सेमेस्टर। अभी कोई भी फैकल्टी, जो भी फैकल्टी सेकंड, जब आप स्टूडेंट सेकंड सेमेस्टर में जाते हो ना, तो हम लोग ये वर्ड्स के बारे में सोचते नहीं, बेसिक वर्ड्स के बारे में हमको पता है, यू ऑल आर अवेयर अबाउट दिस थिंग। मुझे पता है कि बाकी की फैकल्टी ने आपको क्या क्या पढ़ाया है, और बाकी लोगों को पता है कि मेरे सब्जेक्ट में मैंने क्या पढ़ा है। तो जब भी कोई मैनेजमेंट फंडामेंटल्स रिलेटेड का कोई पॉलिसी डिसीजन, पॉलिसी मेकिंग ऐसा वर्ड कोई यूज करेगा ना कोई और सब्जेक्ट में, तो वो सोचेगा ही नहीं कि पॉलिसी क्या होता है, ये बच्चों को बताना जरूरी है। ये बच्चों को ऑलरेडी बताया है कि पॉलिसी क्या होती है, कैसे बनती है, क्या टाइप्स होते हैं, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट द स्कोप ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। क्लियर? Public relation research can be useful to maintain communication with your customers, to increase their loyalty, to increase their integrity, or to increase to earn their trust. You can use public research, public relationship research. उसमें आप loyalty थी, आपको क्या है ना, it is always said that retaining customer is more affordable than gaining new customers. है जो customers है उसको retain करना ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है, लेस कॉस्टलियर होता है देन गेटिंग न्यू कस्टमर्स। सो कस्टमर एक्वाइजिशन कॉस्ट इज ऑलवेज हायर देन कस्टमर रिटेंशन कॉस्ट। तो आपको पब्लिक रिलेशंस पे बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए। व्हेनेवर यू जो है वो कस्टमर्स को जाने मत देना, राइट? क्योंकि नए लाने के लिए फिर आपको एडवर्टाइज करना पड़ेगा उनके पास, उनको फिर कोल्ड कॉलिंग, फॉलो अप, पिचिंग, ये सब चीजें करनी पड़ेगी, सेल्स प्रोसेस होती है वो। तो सर्विसेज मार्केट में ज्यादा जरूरी होता है पब्लिक रिलेशंस मार्केटिंग, सर्विसेज मार्केटिंग, राइट? प्रोडक्ट मार्केटिंग में इतना कुछ नहीं है, गुड्स मार्केटिंग में। समझ में आ रहा है? यस सर। सो द स्कोप, राइट, these are the scopes। और लिमिटेशंस का मतलब होता है जो नहीं कर सकते हो, जो आप मार्केटिंग, जो स्कोप का मतलब होता है जो आप कर सकते हो बाय यूजिंग मार्केटिंग रिसर्च, राइट? व्हाट कैन यू डू बाय यूजिंग मार्केटिंग रिसर्च, दैट इज स्कोप। What can you do by doing MBA? That is scope for MBA. So limitations of MBA: you cannot be a technical person, right? You cannot be a scientist. MBA करके scientist बन सकते हो, right? You cannot be a technical person after doing MBA. You cannot talk anything about science. ऐसे मतलब आप बोलेंगे सर अगर मैं MBA के बाद सीख लूंगा तो क्या? Exceptional cases है, कुछ भी कर सकते हो आप. There is no limit to human being, right? But technically speaking, there are some limitations of everything, हर चीज के. So marketing research के क्या limitations है? So limitations एक दो सेशन और theoretical चीजें झेल लो, उसके बाद सीधा statistics. That too without teaching you all anything about research methodology. रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में बोलूंगा ही नहीं मैं, बिकॉज़ इट्स ऑलरेडी टॉट टू यू। अगर आपको मार्केटिंग रिसर्च अच्छे से पढ़ना है और आपको समर इंटर्नशिप अच्छे से करनी है एंड कुछ सीखना है, नया रिपोर्ट लाना है, सी गेटिंग समर रिसर्च रिपोर्ट इज नॉट दैट डिफिकल्ट फॉर यू पीपल, आई आल्सो नो दैट, बट at the end of your research you are telling me that sir 10% people are satisfied, 90% people are, is that what you call research?
परसेंट में ग्राफ बना के लेके आओगे, पाई चार्ट बना के लेके आओगे, बार चार्ट बना के लेके आओगे, इज दैट अ रिसर्च? No. That can be done by the people in third, fourth, second, third, fourth class also, right? आजकल तो उनको भी कंप्यूटर पढ़ाया जा रहा है, तो फोर्थ फिफ्थ में आते आते सीबीएसई पैटर्न के लोग अच्छे अच्छे रिपोर्ट बनाना सीख जाते हैं। तो वो क्वालिटी का रिपोर्ट करना कभी दिमाग में मत रखो। समर इंटर्नशिप रिपोर्ट शुड बी योर ओन जेन्युइन रिसर्च डॉक्यूमेंट, राइट, which is talking about any particular issue scientifically systematically related to the marketing problems। सब एक साथ डाल दिया मैंने, मार्केटिंग रिसर्च मेथोडोलॉजी सब एक साथ डाल दिया समर इंटर्नशिप। समझ में आया? Yes. एक लाइन में आपको समर इंटर्नशिप में 3 चीजें कैसे करनी थी वो बताया मैंने, तो वो करो एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। सो व्हाट आर द लिमिटेशंस? these are some limitations on your screen talking about the limitations of marketing research। So I think I need not to explain anything which you did not understood, just go through for any kind of activity in business or any kind of process, research process, sales process, whatever the process you talk about, production process, you will always find 3 common limitations। Can you tell me? हर चीज में 3 लिमिटेशंस होते हैं, हर चीज में होते हैं, कुछ भी बोलो आप। टाइम, पैसा, मनी, टाइम, मनी, पैसा, समय और मैन पावर, इंसान। यस सर, मैन पावर, राइट। सो टाइम, मनी, मैन पावर, कॉमन लिमिटेशंस ऑफ एवरीथिंग, बट उसको कॉन्टेक्चुअली समझना और कॉन्टेक्चुअली लिखना आना चाहिए आपको एग्जामिनेशन में, राइट। थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट पे काम करना जरूरी है। सो दिस इज ऑल अबाउट लिमिटेशंस। इट इज कॉस्टली अफेयर, टाइम कंज्यूमिंग है। एक दिन में तो आज रिसर्च रिपोर्ट बनाया, कल आज सोचा कल बनाया रिसर्च रिपोर्ट, ऐसा तो नहीं होता है। इट नीड्स कॉस्ट in data collection, in process, in employment of few people if required, and or for that matter to be paid to the experts who are into research studies। experts को, consultant को पैसा देना पड़ेगा। it has limited scope, right? limited scope in the sense market research business का हर कोई problem solve नहीं कर सकता है, right? information दे सकता है, that too किसी भी प्रॉब्लम के रिलेटेड की नहीं दे सकता है। मार्केट रिसर्च ओनली कैन टॉक अबाउट द मार्केटिंग एस्पेक्ट, राइट। मार्केट रिसर्च कैन ओनली टॉक अबाउट द मार्केटिंग रिसर्च एंड इट विल ओनली गिव यू द इंफॉर्मेशन, नॉट द सॉल्यूशन। सो इट हैज अ स्कोप ऑफ एप्लीकेशन, it has a scope of application, it cannot give you the solution, so it's a limited scope, it has limited practical value, right? मतलब limited practical value मतलब रिसर्च किया तो आपको सॉल्यूशन के लिए इंफॉर्मेशन मिल गई और आप वो इंफॉर्मेशन इंप्लीमेंट करोगे तो सब प्रॉब्लम सॉल्व होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। रिसर्च करने के बाद इंफॉर्मेशन मिलेगा, इंफॉर्मेशन के बाद आप अप्लाई, लेट्स सपोज यू हैव इंप्लीमेंटेड आल्सो दैट इंफॉर्मेशन, बट इज इट गारंटेड दैट बाय इंप्लीमेंटिंग दैट इंफॉर्मेशन योर सेल्स विल इंक्रीज और डिक्रीज? जरूरत तो नहीं है ना वैसा होगा। सो इट्स आल्सो अ प्रैक्टिकली लिमिटेड इन वैल्यू, राइट, लिमिटेड प्रैक्टिकल वैल्यू। हम जो बोलते हैं ना रिसर्च करने के बाद हमको सॉल्यूशन मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिलेगा नहीं, इंफॉर्मेशन मिलेगी जरूर, बट वो इंप्लीमेंट करने के बाद सॉल्व होगा इसका कोई गारंटी नहीं है, राइट। आज तक भी हमको गारंटी नहीं है कोरोना वैक्सीन काम करेगा कि नहीं करेगा। सो रिसर्च हैज लिमिटेड प्रैक्टिकल वैल्यू, मार्केटिंग रिसर्च हैज लिमिटेड प्रैक्टिकल, वैसे फॉर दैट मैटर ऑल रिसर्च हैज, राइट, बट टेक्निकल रिसर्च एंड क्लिनिकल रिसर्च हैज हायर वैल्यू, प्रैक्टिकल वैल्यू, वो ज्यादा करके फेल नहीं जाते। हाँ, उसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, right? So it can predict consumer behavior, it can't predict consumer behavior. You do research, you get to know about this is happening in consumers mind, they are preferring this product, they are how much satisfied about your product and all, but you cannot predict how they are going to behave in future। आगे क्या होने वाला है वो आप predict नहीं कर सकते हो, right? So consumer behavior को predict नहीं कर सकते हो, yes, but you can definitely predict about the sales figure, you can definitely predict about the market trends by implementing marketing research। Consumer behavior is a very factual situation, very volatile activity of the consumer। उस दिन क्या हुआ, कोको कोला का बोतल हटा दिया उसने, वो फुटबॉल प्लेयर ने, राइट। दूसरे दिन से लोगों ने कोको कोला पीना कम कर दिया होगा। कुछ तो लोग हुए होंगे जो रोनाल्डो के फैन है, बोले होंगे इसने नहीं पिया तो मैं भी नहीं पीऊंगा, राइट। सो कंज्यूमर बिहेवियर इज अ वेरी
स्पॉन्टेनियस थिंग, उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है मार्केट रिसर्च। देन कुछ तो करो यार, आप लोग पढ़ो, बताओ। It gives 100, it can give accurate results, right? 100% accurate information नहीं हो सकता है. We have a bias of 5% if you know the confidence level and significance level. We cannot consider any survey to be 100% trustworthy. कोई survey 100% trustworthy नहीं हो सकता है. So we only consider it as 95% trustworthy in terms of surveys. But in marketing research, that also cannot be 100% trustworthy or accurate information. It provides suggestions, not the solutions. We all know. Non-availability of adequate and experienced staff is a limitation. पढ़े लिखे लोग कम है, रिसर्च मार्केटिंग कम लोगों को आता है। एमबीए होने के बाद बहुत सारे लोग मार्केटिंग रिसर्च छोड़ देते हैं और चले जाते हैं सेल्स करने के लिए, या फिर कई और। फॉर एग्जांपल, आई एम मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन पर्सन, मैंने मार्केटिंग रिसर्च छोड़ा, मैंने सेल्स भी छोड़ा, मैं एकेडमिक्स में आके बैठ गया, राइट। सो ऐसा कुछ हो जाता है। सो people those who are technically strong in this particular area are not that much available in our country. अभी हो रहा है because of MBA, बहुत सारे लोग MBA कर रहे हैं, उसमें से भी quality of market research is yet very low in our country. बहुत सारे मार्केटिंग के जो concepts definitions है सब बाहर के लोगों ने ही दिया हुआ है. I don't know what is the problem. See, people like us has a higher responsibility. हम लोगों के सर पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन एकेडमिशियन टू कंट्रीब्यूट इन द थियोरेटिकल नॉलेज ऑफ मार्केटिंग। करेंगे, देखते कुछ हो सकता है कि नहीं, बट दैट्स द प्रॉब्लम। इट यूजेस अ फ्रैगमेंटेड अप्रोच। क्या करता है, समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? Yes. Okay. So the point number 9 is talking about it uses a fragmented approach. कुछ बता सकते हो? What does it mean? और ये limitation क्यों है? एक और क्लास लेनी है यार, जल्दी बोलो। सर फ्रेगमेंट से यही समझ में आता है कि जैसे थोड़ा इधर थोड़ा उधर थोड़ा। परफेक्ट। हाँ बोलो। हाँ नहीं सर, वही आप बोलो। नहीं बोलिए, गो अहेड। सर नहीं तो वो इसीलिए लिमिटेशन है क्योंकि एक वो फ्लो पे नहीं आ पाता है, थोड़ा इधर काम किया, थोड़ा फिर उसको जोड़ना फिर बाद में, तो वो एक लिमिटेशन आ जाता है वहाँ पे। यस, परफेक्ट। सो फ्रैगमेंटेड अप्रोच मींस इट कैन नॉट सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स टुगेदर, राइट? और मार्केट रिसर्च कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड ऑन मल्टीपल एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस टुगेदर। तो ये एक में काम करेगा, राइट? ऐसा तो नहीं हो सकता है आपका बिजनेस शुरू करना है और आपको या फिर आपका बिजनेस चल रहा है, आपका सेल्स भी कम हो रहा है, आपका फाइनेंस में भी प्रॉब्लम हो रहा है, आपके कस्टमर बिहेवियर भी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है, और आपने रिसर्च करवाए थे और सब प्रॉब्लम एक साथ एड्रेस कर लिए, राइट? योर रिसर्च कैन नॉट बी, मार्केटिंग रिसर्च कैन नॉट बी applied in multiple things, or one research cannot be applied in multiple things. You have to have a fragmented approach. You have to consider small aspects and branches of your business in different research studies. It cannot work together. It cannot work in a bunch, right? So that is the limitation of this research. For example, pricing में problem है तो pricing research करना पड़ेगा, right? Customer satisfied नहीं है तो consumer research करना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन में कॉस्टिंग ज्यादा हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन में ज्यादा पैसा जा रहा है तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन रिसर्च करना पड़ेगा, प्लेस रिसर्च करना पड़ेगा। तो प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड और कैन नॉट बी इंक्रीज और इम्पैक्टेड बाय अ सिंगल रिसर्च स्टडी। तो इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि हम बल्क में रिसर्च नहीं कर सकते, राइट? बल्क में नहीं होता है, फ्रैगमेंटेड अप्रोच इट यूजेस, सो इट कैन बी मिसयूज्ड, right? It can be misused. The information created by researchers can be misused for a misuse कैसे हो सकता है, उसके बहुत सारे dimensions है। Either it can be given to your competitors before it is given to you. For example, you have hired some marketing agency to understand the sales prediction of your product for next 1 year. That marketing agency did a great research, took money from you for the research, and they have given that particular report to 1 or 2 days before to competitors. और बाद में आपको भी दे दिया, बट आपको पता ही नहीं, कॉम्पिटिटर्स को दिया ही नहीं है। बट एक दिन पहले जाने से क्या हो गया, 1 या 2 दिन पहले जाने से उन्होंने पूरा स्ट्रैटेजी बना लिया, एंड दे हैव स्टार्टेड वर्किंग बिफोर यू, और दे गॉट टू नो दैट व्हाट यू आर गोइंग टू डू। सो दिस कैन एप्लीकेबल लाइक मिसयूज्ड बाय एनीवन।
Sometimes it can be misused by the managers also. For the same, for their own company itself, that can be misused. वो निगेटिव में मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, बट इट कैन बी मिसयूज, उतना याद रखो, राइट. नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिलायबल डेटा, ये तो है भी नहीं भी है. एवरी लिमिटेशन इज ऑलवेज अंडरस्टूड एज द एवरीवेयर एज अ स्कोप. लिमिटेशन से जो उड़ेगा वो स्कोप में चला जाएगा, जो बचेगा वो, राइट. सो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिलायबल डेटा. Nowadays, if you conduct a survey, people are like self-aware about the information. वो biased हो गए, सब knowledgeable बन गए, सब पढ़े लिखे हैं, honest opinion कोई देता नहीं, सब partial हो गए. So it can be or it cannot be. So the availability of trustworthy data, reliable data, ये problem रहेगा हमेशा किसी भी research के लिए. It is resistant to the marketing manager. Sometimes we call it it's assistant to the marketing manager. क्या बोला है सबसे पहले, यहाँ पे क्या बोला है आपने, आप बताओ. हाउ इट इज रेजिस्टेंट, यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट इज दिस. इट एड्स अ बिजनेस डिसीजन. हु टेक्स डिसीजन? मार्केटर्स टेक डिसीजंस, राइट. मैनेजर्स टेक डिसीजंस. सो यहाँ पे हम बोल रहे हैं इट एड्स, मतलब असिस्ट, सपोर्ट्स. यहाँ पे हम बोल रहे हैं इट रेजिस्ट्स मार्केटिंग मैनेजर्स. कब से बताओ, ये इधर और है, सम और. कुछ चीज एडवांटेज है, कुछ चीज बहुत ज्यादा काम में आती है तो उसके डिसएडवांटेजेस भी है. वैसे ही वो ज्यादा टाइम ये असिस्ट ही करता है, बट समटाइम्स इट रेजिस्ट. कैसे? कैन एनीवन टेल मी? So it creates a doubt, or it creates an ambiguity that if he wants to take a decision, but the research gives him some other inputs or other insights. So it resists managers own understanding, thought process and practical knowledge. आपको लगता है कि साला सेल्स इसलिए कम हो रहा है क्योंकि मेरे टीम को पैसा कम दिया जा रहा है, राइट. उसको मोटिवेशन कम हो रहा है. बट आपका रिसर्च स्टडी कर दिया और रिसर्च ने बोल दिया आपके कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है बिकॉज प्रोडक्ट में ये कमतर था, ये प्रॉब्लम है, राइट. तो इट अपोजेस मैनेजर समवेयर इन डिसीजन मेकिंग एज सेड बाय सत्या. इट गिव्स, इट क्रिएट्स डिलेमा, एम्बिग्विटी इन द मैनेजर्स माइंड कि मैं सही हूँ या रिसर्च रिपोर्ट ने जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की वो सही है. एंड most of the times report information would be considered as the truth, fact, because it has been created with some technical and scientific methods. और मैनेजर को जो लग रहा है वो उसका ओपिनियन है, उसके पास जस्टिफिकेशन नहीं है उस चीज का, राइट. सो जब हम रैशनल डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं तो रिसर्च रिपोर्ट बेस्ड डिसीजन मेकिंग वुड बी प्रेफर्ड फर्स्ट. मैनेजमेंट बोलेगा तुमको क्या लगता है वो छोड़, वो कंपनी ने बोला है ये प्रॉब्लम है, वो एड्रेस करो, सेल्स बढ़ जाएगा. ऐसा हो सकता है ना? Yes, no. हो सकता है. Yeah. So that resists managers. So that is kind of resistance. वैसे बहुत सारे limitations हैं, but based on the limitations, but the advantages are overcoming the limitations. इसके जितने advantages है उससे बहुत limitations बहुत कम है comparatively, right? तो limitations को बाजू में रख के हमको marketing research सीखना तो है ही, बट सिर्फ हमको पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास स्कोप क्या है, लिमिटेशंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, यूज क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है रिसर्च. क्लियर है सब लोगों को? 2 सेशन का बैकअप. Yes sir. राइट. यूजफुल, वाज इट यूजफुल टू यू ऑल? Of course. किसने किसने सुना है पता नहीं. सत्या, किसने किसने सुना होगा? सर सभी ने सुना है, लॉगिन किया है. आई लाइक योर पॉजिटिव अप्रोच. सभी ने सुना है, राइट. 16-17 लोग थे, अभी कितने बचे? 10 बचे. आने के टाइम पे 17 ही आया. आई थिंक द स्ट्रेंथ ऑफ M1 बैच इज 80, राइट? यस सर. 80 लोगों का बैच है. उसमें से ये कौन ज्वाइन किया है? सहेली के मोबाइल से. सहेली के मोबाइल से सर सहेली. ओके. क्यों फैन बिन दिखा रहे हैं हम लोगों को? पता नहीं सर, उसका वीडियो ऑफ है ना, ऑन है, पता नहीं. कोई बात नहीं. ओके. सो थैंक यू सो मच. आई थिंक लेट्स स्टॉप हियर. इन नेक्स्ट सेशन वी विल टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ दिस पर्टिकुलर मार्केटिंग रिसर्च. ये आपको पता ही है, 2-5 मिनट का काम है, बट वैसे भी एक बार अंदर डिस्कशन में चले जाते हैं तो इट टेक्स अस 5-10 मिनट्स. एंड देन वी विल टॉक अबाउट सम मोर theoretical part, basic. And in second unit onwards, we will discuss about application of various tools in marketing research. For example, how do you implement factor analysis? How do you utilize
content analysis, how do you do perceptual mapping. So everything has a different technique. पढ़ेंगे, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बट आप लोग इंटरेस्टिंग, आपका क्लास इंटरेस्टिंग नहीं दिख रहा है। आप यहाँ हो, आपको सुना के कोई मतलब नहीं है। माय फंडा इज वेरी क्लियर, जो एब्सेंट नहीं है उनको सुनाना चाहिए, आप हो, आपको सुना के क्या मतलब, राइट? सर नहीं सर, मार्केटिंग स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है तो जानना तो है और बहुत इंटरेस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। मार्केटिंग स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है, और दूसरा दिस सब्जेक्ट इज वेरी 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 यूजफुल फॉर योर समर इंटर्नशिप। आप इस सब्जेक्ट में से कोई भी एक टेक्निकल चीज उठा के इंटर्नशिप में डालो और खुद करो। फॉर एग्जांपल परसेप्चुअल मैपिंग करो। परसेप्चुअल मैपिंग इज जनरली डन फॉर द market potential analysis, right? So market potential can be estimated for any product, even for the Apple iPhone, right? कितना भी अच्छा प्रोडक्ट हो, कितना भी वेल नोन प्रोडक्ट हो, कितनी भी बड़ी उसकी मार्केट शेयर हो, पोटेंशियल एनालिसिस तो किया ही जा सकता है। तो ये टूल्स, और जब अगर रियली आप मार्केटिंग में चले जाते हो और स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग फंक्शन में कभी चले जाते हो 5-10 साल के बाद, तो आपको ये सब चीजें रोज दिखनी है, रोज थियोरेटिकली, क्योंकि एवरी मार्केट रिसर्च रिपोर्ट coming in front of you would be having these words, these definitions. तो ये थोड़ा सा अभी पता नहीं चलेगा आपको, बाद में जाके पता चलेगा कि अरे पढ़ना जरूरी था। समर इंटर्नशिप में जब आपको आंखें घूमने लगेगी ना, तो मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है, मुझे सिर्फ एज, जेंडर, इनकम ही दिख रहा है, अब इसके आगे क्या क्वेश्चन बनाऊं मैं? तो that is somewhere this research methodology and research subject helps me. I have lost my connection. Thank you so much. Take care. चीज पूछना था जैसे कि चलो गाइस, थैंक यू सो मच। बंद करते हैं। प्रॉब्लम इज दैट यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो गया था, तो रुकते हैं। वैसे आज का डिस्कशन हो गया था, whatever I have planned for this session. Okay, so yes, any query? बोलो। ये जो रिसर्च हमें बनानी है अभी, वो SIP कंपनी में बनानी है या फिर हम किसी भी बना सकते हैं? वैसे आप किसी चीज पे बना सकते हो, बट कंपनी रिलेटेड और कंपनी प्रोडक्ट और प्रॉब्लम के रिलेटेड बनाओगे तो इट विल बी ऑलवेज प्रेज। मैंने आपको अभी देखो बहुत सारी बताने जैसी बहुत सारी चीजें, आई डोंट नो वेदर आई टॉक टू यू ऑल नो। आपके समर इंटर्नशिप के 2 या 3 एजेंडा रहता है। टू मेजर थिंग्स आर देयर व्हिच यू नीड टू टेक केयर। एक तो आपको कंपनी के लिए काम करना है, दूसरा आपको आपकी एकेडमिक नीड पूरी करनी है। आपकी एकेडमिक नीड क्या है? दैट इज समर रिसर्च रिपोर्ट। और कंपनी का काम क्या है? कंपनी का रिक्वायरमेंट क्या है? कंपनी को खुद आपका खुद उनका काम करा के लेना है आपसे। तो आप जब काम कर रहे हो उसी रिलेटेड आप कोई प्रॉब्लम ढूंढो और उसी रिलेटेड समर इंटर्नशिप रिसर्च रिपोर्ट बनवाओ। आपका 2 चीजें बिल्कुल डिफरेंट हो सकती है किसी किसी केसेस में, राइट? जब आप इंटर्नशिप में जाते हो तो कंपनी को पता नहीं आप वहाँ रिसर्च करने के लिए भेजा जाए, वो तो आपको यूज करेगा काम के लिए, किसी काम के लिए, किसी फंक्शन में। वो आपकी अलग लर्निंग होगी, कॉर्पोरेट लर्निंग। बट आपकी एकेडमिक रिक्वायरमेंट क्या है? आपका रिसर्च रिपोर्ट, जो रिसर्च रिपोर्ट बोला जाता है। तो वो रिसर्च रिपोर्ट करने के लिए आपको प्रॉब्लम कंपनी रिलेटेड लेना ही अच्छा है, क्योंकि आप उसी कंपनी में हो, सर्टिफिकेट आपको वो देने वाला है, आप उसी से कुछ सीख रहे हो। तो उसके कुछ प्रॉब्लम रिलेटेड रिसर्च रिपोर्ट बनाओ, या फिर उसी के लिए उसके रिलेटेड उसी इंडस्ट्री का रिपोर्ट बनाओ, उसी इंडस्ट्री का एनालिसिस करो, मार्केट साइज, सेगमेंट, ये सब चीजें चेक करो, उसका इम्पैक्ट इसके सेल्स पे क्या होगा वो चेक करो। तो ये सब चीजें बड़ी कॉम्प्लेक्स है, राइट? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? यस सर। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना। दो ऑब्जेक्टिव है आपके समर इंटर्नशिप। समर इंटर्नशिप इज, हम बोलते हैं समर इंटर्नशिप बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के लिए भेजा होता है, वो बोलने के लिए क्या है, वहां पे ना आपको प्रैक्टिकल नॉलेज कुछ नहीं। कंपनी वाले के दिमाग में होता है ये बंदा आया तो मैं इसको यूज कर लूंगा, मेरा बेनिफिट निकाल लूंगा। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि आप जाओ और हमको रिसर्च रिपोर्ट बना के दे दो, क्योंकि हमने 2-2, 3-3 सेमेस्टर आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी सिखाया है। तो मतलब क्या है हमारा सीखा के? तो ये सब चीजें याद रखो, दैट इज यूजफुल फॉर यू। तो 2 चीजें कम से कम करनी है समर इंटर्नशिप। तो
अगर कोई जा रहा है, गया है और उनको लग रहा है कि हम कंपनी का काम करके बहुत बड़ा लर्निंग ले रहे हैं, तो दे आर मिसिंग ऑन दिस थियोरेटिकल पार्ट। उनको रिसर्च मेथोडोलॉजी समझना उतना ही जरूरी है और अप्लाई करना है। ये जिंदगी में आगे भी बहुत बार काम में आएगा। रिसर्च रिपोर्ट पढ़ेंगे ना वो लोग, तो उनको समझ में नहीं आएगा क्या लिखा है रिपोर्ट। दे डोंट नो द टर्म्स ना। तो इंडिया में सर अभी मार्केटिंग रिसर्च की कौन सी अच्छी कंपनियां हैं? बहुत सारी कंपनीज है वहाँ पे। जैसे मुझे जहाँ तक याद है 2-3 कंपनीज है, पुणे बेस्ड कंपनीज है। मार्केट्स एंड मार्केट्स इज देयर। वाइज गाय करके एक कंपनी है, दे आर आल्सो डूइंग वेल इन द आईटी एंड फार्मास्यूटिकल रिसर्च। एक 2-3 इंटरनेशनल कंपनीज भी है जो यहाँ पे इंडिया में बहुत सारा काम करती है। बट मार्केट रिसर्च कंपनीज आर लाइक देन अलाइड एनालिटिक्स है जो आपके पास आया हुआ है, राइट। PwC है, प्राइस वाटर या प्राइस वाटर कूपर हाउस, समथिंग काइंड ऑफ द कंपनी इज देयर। चलो, जब हम इंडियन इंडस्ट्री को स्टडी करेंगे ना, आई विल टेल यू अबाउट द प्रोफाइल, आई विल टेल अबाउट द मार्केट शेयर, साइज, मेजर प्लेयर्स, क्या ऑफरिंग्स है, क्या सैलरीज है, सब कुछ आएगा उसमें। कौन से सेगमेंट में वो काम करते हैं, कौन से टाइप्स की रिपोर्ट वो प्रिपेयर करते हैं, ये सब बताया जाएगा। ओके सर। या चलो नेक्स्ट टाइम डिस्कस करते हैं। आपका क्लास होगा अभी। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। Happy